बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट नंबर 7 द अर्थ स्पीक्स। इट इज़ बेसिकली अ पोएम एंड here we do the activity is related to talk time। अच्छा, टॉक टाइम में क्वेश्चंस हैं। लुक एट द पिक्चर एंड डिस्कस व्हाट आर दे डूइंग, यानी तस्वीर की तरफ देखें और बताएं कि वो क्या कर रहे हैं। एज वी सी द पिक्चर and we discuss that there are some girls and boys who are cleaning their surroundings, and there is a play area or park, maybe park, and they are cleaning the garbage and throw it into the dustbin. Okay, and they in this way they clean the surroundings. Okay, next discuss with your fellows how can we keep our surroundings clean, कि हम अपने इर्द गिर्द को कैसे साफ रख सकते हैं। To clean our surroundings we should not throw the wrappers or garbage around our surroundings, and we should throw the garbage into the dustbin and clean our environment and can make our surroundings clean. Okay, next देखते हैं। Here is the pre-reading questions. Look at the title and its illustration. Can you guess what the poem is about? Okay, the title of the poem is The Earth Speaks, and illustrations, through illustrations we can guess that the poem is about the earth, and here is the illustration shows that the earth has 4 seasons. One is summer season and autumn and winter and spring. Okay, and here is the yellow part shows the summer season, and green part and where is the tree is full of flowers is showing the spring season, and white part of the section is showing is winter season, and the where the tree is falling leaves is showing the autumn season. Okay, so we can say that the poem is about the earth and its 4 season. ओके, यानी ये जो नज़म है ये ज़मीन से और इसके 4 मौसमों से मुतल्लिक है। ओके, here we recite the poem. The turning earth spoke in a somber voice, 4 seasons I give you. Its deep voice said, I give you spring when the lilacs bloom, I give you autumn when the maples is red. Summer, I give you all crowned with sunshine, and winter of snow and icicle spears. 4 seasons I give you with all their joys and all their pleasure and all their fears. Take my 4 gifts and use each one. Use each wisely, kindly, and well, so that upon the year's last hour, a worthy record you date to tell. The turning earth spoke, but once again, 4 seasons I give you. Its voice was low. The gifts are yours. The gifts are yours, and yours is the task to use my gifts as best you know. Okay, the poet is this poem is written by Leonora Hedrick. ये पोइट का नेम है, और now we translate it. The first sentence, first verse is, first line is the turning earth spoke. अच्छा, इसमें जब भी हम पोइम्स को एलेबोरेट करते हैं या वजाहत से बयान करते हैं तो उसमें फिगर ऑफ स्पीच का इस्तेमाल होता है। पोइट्री में फिगर ऑफ स्पीच का इस्तेमाल होता है, और इस पोएम में आप देखेंगे
पर्सनिफाई किया है, अर्थ को पर्सनिफाई किया। पर्सनिफिकेशन फिगर स्पीच में वो होता है कि जिसमें उसको इंसानी कैरेक्टर से, यानी ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स इज डिस्क्राइब्स एज which to with others something which is not human, ठीक है। यानी जो इंसानी खसूसियात हैं उनको किसी दूसरी चीज़ के साथ मिलाकर बयान करना जो कि इंसान ना हो, ठीक है। यानी किसी दूसरी चीज़ को इंसानी खसूसियात से इंसानी खसूसियात के साथ मिलाकर बताना, ठीक है। अच्छा, हियर इज़ द टर्निंग अर्थ स्पोक इन अ सोम्बर वॉइस। अच्छा, टर्निंग अर्थ यानी मुड़ती हुई ज़मीन, ठीक है। टर्निंग मुड़ना, मुड़ती हुई ज़मीन स्पोक बोलती है, बोली, स्पोक बोली, इन अ सोम्बर वॉइस, सोम्बर कहते हैं गमगीन, उदास, तारीक आवाज़ में, ठीक है। वॉइस आवाज़ यानी गमगीन आवाज़ में बोली, तारीक आवाज़ में बोली। 4 सीजन्स आई गिव यू, 4 मौसम मैं आपको देती हूँ। इट्स डीप वॉइस सेड, इसकी गहरी आवाज़ ने कहा, ठीक है। डीप, गहरी, इसकी गहरी आवाज़ ने कहा मैं आपको 4 मौसम देती हूँ। आई गिव यू स्प्रिंग व्हेन द लाइलिक्स ब्लूम, मैं आपको मौसम बहार देती हूँ जब सफ़ेद, लाइलिक्स कहते हैं सफ़ेद बनफशी रंग के फूल, ब्लूम खिलना, जब सफ़ेद बनफशी रंग के फूल खिलते हैं तो मैं आपको मौसम बहार देती हूँ। आई गिव यू ऑटम व्हेन द मैपल इज़ रेड। अच्छा, मैपल एक दरख्त का नाम है जिसकी जो वुड है वो रेड कलर की होती है। अच्छा, मैं आपको मौसम ख़िज़ां देती हूँ जिसमें कि जब मैपल जो है, जो दरख्त का नाम है मैपल जो है वो सुर्ख रंग का होता है, जो मैपल सुर्ख रंग का होता है, तो मैं आपको ख़िज़ां का मौसम देती हूँ। ये ज़मीन कह रही है, ठीक है। समर मौसम गर्मा, आई गिव यू ऑल क्राउंड विद सनशाइन, मौसम गर्मा मैं देती हूँ सब, यानी सूरज की रोशनी से सब चीज़ों ने ताजपोशी की होती है, वो मौसम गर्मा देती हूँ। यानी मौसम गर्मा में इतनी शदीद धूप होती है, इतनी सूरज की रोशनी होती है कि उससे सब चीज़ें जो हैं वो चमकीली होती हैं, सब चीज़ों ने सूरज की रोशनी का ताज पहना होता है, ठीक है। सूरज की रोशनी से ताजपोशी की होती है, तो वो मैं मौसम गर्मा आपको देती हूँ। एंड विंटर ऑफ स्नो एंड आइसिकल स्पेयर्स, विंटर ऑफ स्नो, स्नो कहते हैं बर्फ़ को, ठीक है, जो क्लाउड से एक आइस क्रिस्टल में जो इज़ फॉलिंग ऑन द ग्राउंड, जो कि क्लाउड से एक क्रिस्टल की शक्ल में, क्रिस्टल आइस की शक्ल में वो ज़मीन पर गिरती है, उसको स्नो बोलते हैं, ठीक है। तो मौसम सरमा में बर्फ़ एंड आइसिकल स्पेयर्स, आइसिकल आइस से निकला है, यानी कि आइस बर्फ़ जमी हुई चीज़ को कहते हैं। और ये स्पेयर्स कहते हैं नेज़े जैसा कोई नुकीली चीज़, ठीक है। यानी जब बर्फ़ कोई चीज़ जमती है तो वो एक नुकीली शेप में आती है, ठीक है। तो जमी हुई नुकीली, मौसम गर्मा में बर्फ़ एक जमी हुई नुकीली शेप में, शक्ल में, ठीक है, नेज़े की नुकीली शक्ल में। 4 सीजन्स, 4 मौसम, आई गिव यू विद ऑल देयर जॉयज़, 4 मौसम मैं आपको देती हूँ विद ऑल देयर जॉयज़, उसकी सब खुशियों के साथ, उसकी सब रानाइयों के साथ मैं आपको 4 मौसम देती हूँ। एंड ऑल देयर प्लेयर्स एंड ऑल देयर फेयर्स, और उसकी तमाम खुशियाँ और उसके तमाम गम और उसके तमाम खौफ, फेयर्स खौफ, ठीक है, उसकी तमाम खुशियाँ और उसके तमाम खौफ, और ये मैं आपको 4 मौसम देती हूँ। अच्छा, टेक माई 4 गिफ्ट्स, ये मेरे 4 तोहफ़े ले लो। एंड यूज़ ईच वन, और हर एक को इस्तेमाल करो। यूज़ ईच वाइजली, काइंडली एंड वेल, वाइजली दानिशमंदी से, अक्लमंदी से, काइंडली प्यार मोहब्बत से, शफकत से, एंड वेल अच्छे तरीके से। यानी इन सब को, हर एक को
अक्लमंदी से, दानिशमंदी से, मोहब्बत से, शफ़क़त से और अच्छे तरीके से इस्तेमाल करो, सो दैट ताकि अपॉन द ईयर्स लास्ट आर, अपॉन द ईयर्स साल में, लास्ट आर साल की आखिरी घड़ी में, ताकि साल की आखिरी घड़ी में आखिरी साथ पर अ वर्दी रिकॉर्ड यू डे टू टेल। वर्दी कहते हैं कीमती, लायक, मुस्तहिक, ठीक है। रिकॉर्ड का मतलब होता है महफूज करना, किसी चीज़ को महफूज करना, कलम बंद करना, ज़ाब्ता है तहरीर मिलाना, ठीक है। यानी अ वर्दी रिकॉर्ड एक कीमती चीज़ जो आप रिकॉर्ड करते हैं यानी महफूज करते हैं, कलम बंद करते हैं, लिखते हैं। यू डेट जो आप लिखते हैं यानी तारीख पे उस तारीख पे निशान लगाते हैं टू टेल बताने के लिए। यानी एक कीमती चीज़ जो आप तहरीर करते हैं और डेट को मेंशन करते हैं और तारीख को मेंशन करते हैं बताने के लिए, ठीक है। एक कीमती तहरीर जो आप बताने के लिए तहरीर करते हैं। द टर्निंग अर्थ मूर्ति हुई ज़मीन, स्पोक बोलती है, मूर्ति हुई ज़मीन बोली, बट वंस अगेन लेकिन एक दफ़ा फिर, ठीक है। मूर्ति हुई ज़मीन एक दफ़ा फिर बोली। 4 सीजन्स आई गिव यू, 4 मौसम में आपको देती हूँ। इट्स वॉइस वॉज लो, इसकी आवाज़ मध्यम थी यानी कि धीमी थी। द गिफ्ट्स आर योर्स, तोहफ़े आपके लिए हैं। एंड योर्स इज़ द टास्क, और ये आपका काम है, ये आपकी ज़िम्मेदारी है। टू यूज़ माई गिफ्ट्स, के मेरे तोहफ़े को इस्तेमाल करो। एज़ बेस्ट यू नो, ऐसे बेहतरीन जैसे कि आप जानते हैं। यानी मेरे तोहफ़े को आप ऐसे बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करते हैं जैसे आप जानते हैं, ठीक है। तो ये वाइल रीडिंग क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट वाइल रीडिंग क्वेश्चन है, हु इज़ एड्रेसिंग द रीडर इन द पोएम। तो यहाँ पे डेफिनेटली द अर्थ इज़ एड्रेसिंग द रीडर टू द रीडर इन द पोएम, ठीक है। यानी ज़मीन पढ़ने वालों से खिताब कर रही है या बोल रही है पोएम में, यानी इस नज़म में ज़मीन पढ़ने वालों से खिताब कर रही है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट गिफ्ट्स हैज़ द अर्थ मेंशन्ड। द अर्थ हैज़ मेंशन्ड द 4 गिफ्ट्स, इट इज़ अबाउट टू, इट इज़ रिलेटेड टू 4 सीज़न, ठीक है। यानी इस ज़मीन ने यानी 4 तोहफ़े को बयान किया है। वो कौन से, उसके जो 4 मौसम हैं उनको, 4 मौसमों के बारे में उसने बात की है, यानी उसको उसने गिफ्ट का नाम दिया है, तोहफ़े का नाम दिया। अच्छा, व्हाट इज़ द टास्क गिवन टू द रीडर्स बाय द अर्थ। यानी ज़मीन की तरफ से रीडर्स को, पढ़ने वालों को क्या जिम्मेदारी दी गई, क्या काम दिया गया है। द टास्क गिवन टू द रीडर बाय द अर्थ इज़ दैट टू यूज़ द गिफ्ट्स एज बेस्ट यू नो। यानी मेरे तोहफ़े को इस्तेमाल करो जैसा कि आप बेहतरीन तरीके से आप जानते हैं। एंड इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू यूज़ द गिफ्ट्स एज बेस्ट यू नो। ओके, हमारा ये पोएम कंप्लीट हुई और इसके हम डिफ़िकल्ट वर्ड्स मीनिंग देखते हैं। Here are difficult verse meanings related to the poem The Earth Speaks, and here's the first word, somber. Somber mean गमगीन, उदास, यानी तारीक लहजे में, गमगीन लहजे में, उदास, ठीक है। अच्छा, स्प्रिंग मौसम बहार। लाइलेक्स सफ़ेद बनफशी रंग के फूल को बोलते हैं, लाइलेक्स सफ़ेद बनफशी रंग। अच्छा, ब्लूम खिलना, फूलों का खिलना। मैपल दरख्त का नेम है जिसमें कि वो ऑटम में रेड होता है, ठीक है। यानी जो मैपल ट्री है वो उसका कलर रेड होता है ऑटम सीज़न में। अच्छा, क्राउंड ताजपोशी की, यानी हर चीज़ ने यानी अगर कॉन्टेक्चुअल मीनिंग के हवाले से बात करें तो क्राउंड विद सनशाइन, यानी कि सूरज की धूप से ताजपोशी की, या सूरज की धूप हर चीज़ ने ओढ़ ली। अच्छा, सनशाइन धूप, सूरज की रोशनी। समर मौसम गर्मा। विंटर मौसम सरमा। स्नो बर्फ़। आइसिकल बर्फ़ानी, ठीक है। अच्छा, ये स्नो जो है
स्नो और आइस में क्या फ़र्क होता है? स्नो होता है जो नेचर की तरफ से, क्लाउड से जो फॉलिंग ऑन द ग्राउंड, जो एक क्रिस्टल आइस की सूरत में वो नीचे गिरती है, उसको हम बोलते हैं स्नो, ठीक है। और जो आइस है वो आइस किसी चीज़ का जमना, वो भी, उसे भी बर्फ़ ही बोलते हैं, लेकिन वो यानी सर्दी की वजह से यानी कि टेम्परेचर में इतनी कमी आ जाना कि हर चीज़ जो पानी है वो उसका जम जाना, उसको हम आइस बोलते हैं, ठीक है। और जो स्नो है वो क्लाउड से नीचे ग्राउंड पे गिरती है, तो उसको हम स्नो बोलते हैं। और आइस जो है वो टेम्परेचर में कमी की वजह से जो भी यानी ग्राउंड में पानी होगा या कोई भी चीज़ जो होगी ग्राउंड लेवल पर, तो वो उसके जमने की हालत को हम आइस बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आइसिकल बर्फ़ानी, स्पियर्स नेज़े, नेज़े मीन कोई नुकीली चीज़, सीजन्स मौसम, प्लेयर खुशी, फियर्स खौफ, वाइजली अक्लमंदी से, दानिशमंदी से, समझदारी से, काइंडली शफकत से, प्यार मोहब्बत से, वेल अच्छा, अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से, लास्ट आवर आखिरी घड़ी, आखिरी साथ यानी आखिरी वक्त, वर्दी कीमती, लाइक मुस्तहिक, काबिल, ठीक है। रिकॉर्ड महफूज करना, कलम बंद करना, ज़ब्त तहरीर में लाना, ज़ब्त तहरीर में लाना, तो उसको रिकॉर्ड कहते हैं, ठीक है। लो धीमा यानी कि पस्त आवाज़ में, पस्त धीमी आवाज़ में। अच्छा, टास्क, टास्क का मतलब होता है काम या कोई ज़िम्मेदारी, ठीक है। अच्छा, ये हमारे वर्ड्स मीनिंग हो गए। और ये आज हमने लेसन नंबर 7 द अर्थ स्पीक्स, इसके वर्ड्स मीनिंग और ट्रांसलेशन की है। और मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आया होगा। और इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन अबाउट दैट टॉपिक, अबाउट दैट पोएम, प्लीज़ comment, write in comment, ask in comment box, and I will try to answer you. Please, if you learn something useful from this video, please like, comment and share, and support my channel. And if you are the new one on this channel, please subscribe my channel, and don't forget press the bell icon button so that you may receive the new notification of new lesson. Okay, remembers me your prayers, and stay blessed, be happy. See you soon in the next video. Till then, Allah Hafiz.